ایک لازوال رشتہ، محبت، قربانی اور آزمائش کی کہانی۔ جب زندگی امتحان لیتی ہے، جب رشتے انا کے طوفان میں بکھرنے لگتے ہیں اور جب اپنوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا محبت کا رشتہ پھر بھی قائم رہتا ہے؟ یہ کہانی ہے احمد اور فراز کی، دو بھائی جو ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے، مگر حالات نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ لیکن کیا خون کے رشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں، یا پھر سچائی اور خلوص کی روشنی ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے؟ آئیے ایک ایسی کہانی کا حصہ بنے جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی احمد اور فراز اپنے والدین کے انتقال کے بعد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے ہیں اور ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا رشتہ محبت، اعتماد اور قربانی پر مبنی ہے۔ رات کا وقت، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ احمد اور فراز اپنے صحن میں بیٹھے ہیں۔ احمد جو بڑا بھائی ہے، فراز کو تسلی دے رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دونوں نے بہت کچھ کھو دیا، لیکن میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی، کبھی کبھی دل بہت گھبرا جاتا ہے۔ امی ابو کے بغیر یہ دنیا اجنبی لگتی ہے۔ لگتا ہے جیسے سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹوٹ جائیں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ابا ہمیں کہتے تھے کہ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں گے، ایک دوسرے کی ڈھال بنیں گے۔ میں تمہاری ہر خوشی اور ہر دکھ میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے امی ابو چاہتے تھے۔ لیکن بھائی، کیا ہم واقعی سب کچھ سنبھال پائیں گے؟ میں تمہاری طرح مضبوط نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ فراز، ہم سب کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا ہو تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کے بجائے اپنے دل کے قریب ایک ساتھی، ایک دوست کے طور پر رکھا ہے۔ تمہیں کچھ بھی ہو، میں سب سے پہلے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تمہاری ہر مشکل میری مشکل ہے، تمہارا ہر خواب میرا خواب ہے۔ اگر کبھی میں غلطی کر بیٹھوں، اگر کبھی میں راستہ بھٹک جاؤں، تو کیا تم پھر بھی میرا ساتھ دو گے؟ کیا تم مجھے چھوڑو گے؟ فراز، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک جب بھی تم گرے، میں نے تمہیں سنبھالا ہے۔ کیا تمہیں وہ دن یاد ہیں جب تم درخت سے گرے تھے اور تمہیں لگا تھا کہ تم پھر کبھی چل نہیں سکو گے؟ میں نے تمہیں کندھے پر اٹھا کر حکیم کے پاس پہنچایا تھا، تمہاری تکلیف اپنی تکلیف سمجھی تھی۔ آج بھی اگر تم گر جاؤ تو میں تمہیں سنبھالوں گا، اگر تم راستہ بھٹک جاؤ تو میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ بھائی صرف خون کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا وعدہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تم واقعی دنیا کے سب سے بہترین بھائی ہو احمد۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وعدہ ہے فراز، ہم ایک ساتھ جائیں گے، ایک ساتھ ہر دکھ سہیں گے اور ایک ساتھ ہر خوشی بانٹیں گے۔ جب تک میں ہوں، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر کا صحن جہاں سارا اور زینب آمنے سامنے کھڑی ہیں، دونوں کے چہرے غصے سے تپ رہے ہیں اور ماحول میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ روز روز کا تماشا آخر کب ختم ہوگا زینب؟ تمہیں ہر وقت شکایت کیوں رہتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مسئلہ مجھے ہے، ہمیشہ تو تمہاری چلتی ہے، بس گھر میں کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تمہارے حساب سے ہوتا ہے۔ احمد بھائی جو کہتے ہیں وہی صحیح مانا جاتا ہے، اور فراز، اسے تو تم نے ایک کونے میں کھڑا کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے شوہر کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھو، وہ خود اپنی رائے نہیں رکھتے، ہر وقت تمہارے کہنے پر چلتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے شوہر کی چلتی ہے تو یہ تمہاری اپنی غلط فہمی ہے۔ میری غلط فہمی؟ سچائی یہی ہے کہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں۔ میں جب بھی کوئی بات کہتی ہوں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں، بس ایک مہمان ہوں۔
वो तो अब तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी। जब तुम अपनी मर्जी से सारे फैसले करवाती हो, तब तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि दूसरे भी इस घर में रहते हैं? मैंने कब तुम्हारी इज्जत कम की? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात नहीं मानी जाती, तो शायद इसलिए कि तुम हर वक्त शिकायत करती रहती हो, मसले पैदा करती हो। तुम कह रही हो कि मैं मसले पैदा करती हूँ? असल में तुम चाहती हो कि हर बात तुम्हारी मर्जी से हो। तुम चाहती हो कि मेरे शोहर भी तुम्हारे शोहर की बात माने, वो खुद कोई फैसला ना करे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा, बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर क्या करोगी? घर तोड़ दोगी? भाइयों के दरमियान दरार डाल दोगी? यही चाहती हो ना तुम? अगर भाइयों के दरमियान दरार आ रही है तो वो तुम्हारी वजह से आ रही है। तुम हर वक्त अपने शोहर को अक्सा कर उन्हें फैसले करने पर मजबूर करती हो। मेरा शोहर जब भी अपनी कोई बात कहता है वो रद्द कर दी जाती है। ये तुम्हारा वहम है ज़ैनब। अगर तुम्हें लगता है कि फराज की कोई बात नहीं मानी जाती, तो इसकी वजह तुम खुद हो। तुमने खुद से मजबूर कर दिया है कि वो किसी बात में खुद फैसला ना करे। तुम हर वक्त उसके सर पर सवार रहती हो। और तुम क्या करती हो? तुम्हें लगता है कि तुम इस घर की मलका हो और बाकी सब तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बर्दाश्त करना तुमने कभी सीखा ही नहीं। हर वक्त अपनी मनवाने की जिद, अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की कोशिश। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, इस घर की नहीं। रात का वक्त कमरे में ज़ैनब और फराज आमने सामने खड़े हैं। ज़ैनब की आंखों में गुस्सा है, जबकि फराज परेशान नजर आ रहा है। कमरे में कशीदगी साफ महसूस की जा सकती है। बस बहुत हो गया फराज, मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकती। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, हर वक्त सिर्फ अपने भाई और भाभी के बारे में सोचते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा घर है, मेरा भाई है। हमने बचपन से साथ वक्त गुजारा है। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तुम्हारा घर होगा, मगर मेरे लिए तो ये एक कैद खाना बन चुका है। यहाँ सिर्फ तुम्हारे भाई की चलती है, उनकी बीवी की बात मानी जाती है। मेरी हैसियत क्या है यहाँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी बार नजरअंदाज हो चुकी हूँ। ऐसा नहीं है ज़ैनब, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूं। अहमद भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उन्हें यूं कैसे छोड़ दूं? बस यही मसला है, तुम्हारे लिए मैं अहम नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई अहम है। तुमने कभी सोचा कि मेरी क्या हैसियत है इस घर में? हर फैसला वो करते हैं, हर हुक्म उनका चलता है, और तुम बस उनके ताबे हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अहमद भाई कभी भी हम पर अपनी मर्जी नहीं थोपते, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। सोचते हैं? तो फिर क्यों मेरे हर फैसले को नजरअंदाज कर दिया जाता है? मैं जो भी कहती हूँ इस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। मैंने कब चाहा था कि तुम्हें अपने भाई से अलग कर दूं, मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे कह रही हूँ, हमें यहाँ से जाना होगा। ज़ैनब, जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत करो। सोचो, हम कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ यही है। अगर हम अलग हो गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। बस मुझे इस घर से निकलना है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मेरी कोई हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कैसी बात कर रही हो ज़ैनब? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं। वही भाई जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, जो मेरी हर खुशी और गम में मेरे साथ खड़ा रहा। मैं कैसे एक पल में सब कुछ भूल जाऊं? वाह होती तो तुम एक लम्हे के लिए भी ना सोचते, मगर तुम्हें अपने भाई की ज्यादा फिक्र है, मेरी नहीं। मैं अब मजीद इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं अकेली चली जाऊंगी। फराज खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में बेचैनी है।
दिल और दिमाग में कशमकश चल रही है। एक तरफ इसकी बीवी जिसे वो नाराज नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ इसका भाई जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। वो गहरी सांस लेता है और ज़ैनब को देखता है जो बेताबी से उसके फैसले का इंतजार कर रही है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि ज़ैनब सख्त लहजे में बोल पड़ती है। फैसला करो फराज, तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है या अपनी बीवी के साथ? फराज की आंखें झक जाती हैं। वो जानता है कि ये फैसला आसान नहीं होगा, मगर ज़ैनब के सख्त अल्फाज ने इसे दीवार से लगा दिया। आखिरकार वो गहरी सांस लेता है और नजरें चराते हुए सर झुकाकर कहता है, ठीक है, हम अलग हो जाएंगे। ज़ैनब के चेहरे पर वक्ती इत्मीनान आता है, मगर फराज की आंखों में बेबसी और दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, जैसे वो कुछ कीमती चीज खो देने वाला हो। भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बस भाईजान, मैं और ज़ैनब ने फैसला किया है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हम इस घर में मजीद नहीं रह सकते। तुम क्या कह रहे हो फराज? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अलग होना? क्यों? आखिर इस घर में क्या कमी है? क्या मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? भाईजान, ये फैसला आसान नहीं था, मगर ज़ैनब को लगता है कि इस घर में इसकी इज्जत नहीं, उसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं। वो कहती है कि हर बात में बस आप और भाभी की ही चलती है और हमें पीछे रखा जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी शुदा जिंदगी इन मसाइल की नजर हो जाए। तो ये सब ज़ैनब के कहने पर हो रहा है। फराज, तुम खुद सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी कोई बात नजरअंदाज की गई हो? तुम जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बराबर रखा है, तुमसे कभी फर्क नहीं किया, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें इस घर में इज्जत नहीं मिलती। ये तुम्हारी अपनी सोच है या ज़ैनब की? भाईजान, ये ज़ैनब अकेली नहीं, मैं भी यही महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारें, किसी के साए में नहीं। किसी के साए में? ये कोई साया नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है। तुमने कभी सोचा कि बाहर की दुनिया कैसी है? यहाँ तुम्हें इज्जत, मोहब्बत, सुकून सब कुछ मिला है, मगर बाहर क्या है तुम्हें नहीं मालूम। दुनिया बहुत जालिम है। तुम ये सब छोड़कर जाओगे तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भाईजान, मैं आपकी हर बात समझता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो ज़ैनब नाखुश रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी तलखियों में डूब जाए। मेरी फिक्र नहीं? तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? हमने माँ बाप के जाने के बाद एक दूसरे को संभाला, हर दुख हर खुशी एक साथ बांटी, और आज तुम किसी के चंद अल्फाज में आकर मुझे छोड़ने का फैसला कर चुके हो। भाईजान, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, मगर हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे जाना ही होगा। अहमद आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में दर्द नुमाया होता है। तो ठीक है, चले जाओ, मगर याद रखो, बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें रोकने के लिए मंत्र समाजत नहीं करूंगा, क्योंकि जो भाई मेरे साथ रहना ही ना चाहे उसे जबरदस्ती रोकने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तुम्हें एहसास होगा कि ये दुनिया तुम्हारे साथ कितनी सख्त हो सकती है, जब तुम्हें लगेगा कि भाई की मौजूदगी कितनी जरूरी थी, तब मैं वहीं हूंगा जहां आज हूं। भाईजान, मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी बातें गलत साबित हों। मैं चलता हूं। फराज और ज़ैनब अलहदा हो जाते हैं और अपनी अलग जिंदगी शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता है, अहमद के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं, जबकि फराज मुश्किलात में घर जाता है। इसका कारोबार नुकसान में चला जाता है, माली मसाइल बढ़ने लगते हैं और ज़ैनब का रवैया भी बदलने लगता है। ज़ैनब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने अपने भाई को छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। वो मेरा भला चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों में आकर उनसे मुंह मोड़ लिया। तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो, तुम खुद ही तो अलग होना चाहते थे। अगर तुम अपने भाई के बगैर नहीं रह सकते थे
तो फिर मुझे क्यों साथ लेकर मैंने सोचा था कि हम अपनी नई जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारेंगे, मगर यहाँ तो सब बर्बाद हो गया। न पैसा, न सुकून, न भाई का साथ। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अहमद भाई मेरे लिए कितना जरूरी था। फराज के दिल में पछतावा मजीद बढ़ जाता है। अगली सुबह वो शर्मिंदा होकर अहमद के दरवाजे पर पहुंचता है। भाई, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैंने आपसे अलग होकर बहुत बड़ी गलती की है। फराज, तुम्हें अब एहसास हो रहा है? जब मैं तुम्हें रोक रहा था तब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। भाई, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे फिर से अपने साथ रख ले। अहमद की आंखों में नरमी, दिल में मोहब्बत। अहमद नरम लहजे में, आ जाओ फराज, तुम मेरे भाई हो और भाइयों के बीच कभी दीवार नहीं आनी चाहिए। अहमद अपने भाई को गले लगा लेता है। दोनों भाइयों के आंसू बहने लगते हैं। यूं एक बखरता हुआ खानदान दोबारा जोड़ जाता है और सब एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि खानदान और भाईचारे को हमेशा आना और गलत फहमियों से बचा कर रखना चाहिए। हकीकी मोहब्बत और खुलूस हमेशा रास्ता दिखाते हैं, बस हमें उसे पहचानने में देर न करनी चाहिए।